اردو ورلڈ سری نگر کے سامعین کرام کو سید ناربلی کا آداب پہنچے۔ سامعین کرام، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کی ملاقات اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوعات پر کریں۔ اس سلسلے کی کڑی کے طور پر آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں سید حسام الدین صاحب کو، اور آن لائن پر ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے مہمان آپ ہیں اعجاز طالب صاحب، جو کالم نویس، شاعر اور ادیب ہیں۔ جعفر جمیل صاحب جڑیں گے ہمارے ساتھ، جو شاعر اور قلمکار ہیں، اور شیخ عمر گل صاحب جو محب کشمیری ادب ہیں، یہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ جڑیں گے آج۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی، چونکہ زبان ماضی کے مطالعے اور حال کے اظہار اور مستقبل کی پیش بندی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ قومیں نسل در نسل اپنی روح اور احساسات زبانوں کے ذریعے ہی آنے والی نسلوں تک منتقل کرتی آئی ہیں۔ چونکہ اردو بھی نسلوں سے منتقل ہو رہی ہے، منتقل ہوتی آ رہی ہے، لیکن اگر دور حاضرہ کی بات کریں تو اردو زبان حد توقع تک عروج نہیں پا سکی۔ کیا وجہ ہے؟ آج اس پر ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے اسی موضوع کو چنا ہے، تو سب سے پہلے میں جناب اعجاز طالب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرین خیالات سے کہ آپ کی نظر میں اردو کی موجودہ صورتحال کیا ہے، ہمارے سامعین کرام کو نوازیں گے۔ آپ ہیں اعجاز صاحب۔ اعجاز صاحب، آپ ذرا اپنے سامعین کو بتائیں کہ آپ کی نظر میں اردو کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ سر، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ ہیلو جی، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ جی میں اپنا سوال پھر دہراتا ہوں اعجاز صاحب، کیا آپ نظر ڈالیں کہ آپ کی نظر میں اردو کی موجودہ جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ اگر میں یوں کہوں گا کہ اردو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، جی اگر یوں کہوں کہ اردو اپنے آخری سانسیں لے رہا ہے، جی لے جانا ہوگا، کیونکہ اردو کو وہ یہ سرکار، ہمارے جموں و کشمیر کی بات میں اگر کہوں گا تو یہ سرکاری زبان ہے، یہ سرکاری زبان ہے۔ لیکن آپ جہاں بھی جاؤ، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی جاؤ، سرکاری زبان ڈپارٹمنٹ میں جاؤ، وہاں آپ کو اردو میں نام بورڈ پڑھنے کو نہیں ملے گا، بلکہ انگریزی میں ملے گا آپ کو۔ یہ بھی وجوہات ہیں یہ زوال پذیر ہونے کی، اور کئی سارے وجوہات ہیں جو سب سے بڑا وجوہات یہی ہے کہ سرکاری سطح پر اس کے توطیل ماں کا سلوک روا رکھا گیا۔ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم صرف سرکار پہ ہی اس کی بلیم چڑھائیں، سرکار پہ ہی ذمہ داری ڈالیں تو شاید ٹھیک نہیں ہوگا اعجاز صاحب، کیونکہ اس میں سوسائٹی کا بھی رول ہے، اس میں ہمارے پیرنٹس کا بھی رول ہے، اور ہمارے ادیب و شاعروں اور قلمکاروں کا بھی رول ہے۔ جی آپ صرف سرکار پر ہی مت ڈالیے گا اس کا بوجھ، اور دوسروں کو بھی بتائیے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں اور وہ کیوں نہیں نبھا پا رہے ہیں۔ وہ نہیں، میں سرکار پر ہی الزام نہیں ٹھہراؤں گا، بلکہ ہر ایک جموں و کشمیر کے ہر ایک فرد، خصوصاً اردو کے چاہنے والوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے وفا کرے، لیکن وفا نہ ہو پایا ان سے۔ وفا کیوں نہ ہو پایا؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ مغربی ممالک کی ہوا نے ہمارے ذہن انگریزی سے آلودہ کر دیے ہیں۔ جی ہاں، یہ تو بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ آپ کا ماننا ہے کہ جو مغربی لینگویج، ویسٹرن لینگویجز جو ہے، نے ہمارے ذہنوں کو آلودہ کر دیا ہے، جو کیبلوں کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، میگزینوں کے ذریعے
प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के जरिए उनने हमारे जहन को आलूदा कर ही दिया है। यही वजह है कि हमारे जो लोग उर्दू बोलते हैं, अगर आप किसी जगह पर जाओगे उर्दू बोलोगे तो आपको पढ़ा लिखा नहीं समझा जाएगा। अगर अंग्रेजी बोलोगे तो अनपढ़ होगे, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आपको बहुत क्वालिफाइड माना जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये बात सही है, बात सही है। तो क्या करना चाहिए हमें? अगर देखिए, अगर हम कहें जबानों की बात अगर हम करें तो अंग्रेजी चूंकि वर्ल्ड वाइड जबान है, इसमें कोई शक नहीं है, और वक्त का चलन भी है कि अगर आपके जैसे आपने अभी फरमाया कि अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आपको तालीम याफ्ता नहीं समझा जाएगा, आपकी इज्जत नहीं की जाएगी। लेकिन जहां तक हम देखेंगे बुनियादी तौर पर हर किसी जबान का अपना एक महत्व होता है, अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। हर एक जबान अपने अपनी जगह पे काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं एरियाज में जाए या उन्हीं एरियाज में जाना होगा हमारा जहां सिर्फ अंग्रेजी चलता है। कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पे अंग्रेजी अभी तक भी लोगों को या तो पसंद नहीं है या फिर वो बोलना नहीं चाहते हैं। मेरा सवाल जो था आपसे वो ये था कि उर्दू जवाल पजीर क्यों हो रहा है, उर्दू तरक्की क्यों नहीं पा रहा है। और मौजूदा सूरत हाल जो आपने भी बताया कि अंग्रेजी जबानों ने, बाहर की जबानों ने इस पर फौकियत पाई है, तो इसमें रोल किसका है? सरकार का ही तो नहीं है ना? हमें कोई सरकार का ही नहीं है, बल्कि हर एक शख्स का इसका अपना अपना रोल है। मैं अपनी रियासत जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो हर एक का अपना अपना रोल इसमें था। इसको तहफ़्फ़ुज़ देने का जो इसका मुकाम था, उस मुकाम पर ले जाने के लिए हर एक का जिम्मेदारियाँ थी। लेकिन हमने इसके साथ वफा नहीं किया। वफा क्यों नहीं किया? क्योंकि अंग्रेजी जो वेस्टर्न लैंग्वेजेस हैं वो हमारे जहनों को आलूदा कर चुकी हैं। अगर हम आज उर्दू में किससे बात करेंगे तो वो अंग्रेजी से, सामने वाले से उर्दू में बात करें वो अंग्रेजी के 2 अल्फाज मारेगा, क्या गेट कर देगा, आपको इम्प्रेस करेगा आपको अंग्रेजी से। जब आप उर्दू बोलेंगे तो वो समझेगा ये शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अगर आप अनपढ़ हो तो अंग्रेजी बोल सकते हो तो आपको क्वालिफाइड माना जाएगा, एजुकेटेड माना जाएगा। ये भी एक जवाल पजीर होने के, तभी तो हमारे बच्चे आजकल शुरू से ही अंग्रेजी को ही फरोख्त देते हैं, उर्दू को आप कम तर समझते हैं। यहाँ तक आप देखें, यहाँ के बड़े बड़े स्कूल हैं, हम डिस्को हैं, मनूसन हैं, जितने बड़े स्कूल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितने भी बड़े स्कूल हैं वहाँ पर उर्दू एक जबरन पढ़ाया जाता है। उनको वो जबरन बच्चों को 10वीं तक पढ़ाया जाता है, जबरन उनको पढ़ाया जाता है। वो उस यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ वो शौक उनमें नहीं डाला गया कि उर्दू ही एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें अपने ख्यालात और एहसासात का परमला इज़हार आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे नस्ल को इसी से दूर किया गया। हम भी इसमें, हमारे वालिदैन भी, बच्चों के वालिदैन भी बराबर से जिम्मेदार हैं, और हम लोग भी हैं, और हमारे कलमकार लोग भी हैं। हर एक इसमें सरकारी सतह पर भी कमजोरियाँ रही हैं। हेलो जी, ये थे हमारे एजाज तालिब साहब, जिनका एक फरमाना है कि उर्दू की जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर वो कहीं ना कहीं बिगड़ गई है, अगर वो कहीं ना कहीं उरूज को नहीं पहुंची है, तो इसमें अमल दखल है वेस्टर्न लैंग्वेजेस का, जिन्हें शायद हम लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं बनिस्बत इसम के कि हम उर्दू को फॉलो करते, अपनी लोकल लैंग्वेजेस को फॉलो करते। अभी एजाज साहब ने एक बात कही कि अगर हम कहीं जाते हैं और अगर हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो लोग हमें वो इज्जत नहीं देते हैं शायद जिसके हम हकदार हैं। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी माफी चाहता हूं, दुरुस्ती करना चाहूंगा कि अगर कहीं पे उर्दू मुशायरा होता है, कहीं पे उर्दू में कोई बहस मुबासा होता है या और कोई चीज होती है, तो जिन लोगों को उर्दू समझ ही नहीं आती है वो भी बड़े मस्त अंदाज में वहां पे मगन होके रह जाते हैं। अगर देखें तो इसमें कसूर किसी का नहीं है, कसूर ये हमारा ही है, हमारे पेरेंट्स का, जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं। अगर हम बिस्को की बात करें, नलन सिंह की बात करें, तो यहां पे मैं एक जाती तजुर्बा एजाज साहब से शेयर करना चाहूंगा कि चूंकि जम्मू कश्मीर में हिंदी जबान का कोई चलन नहीं था, लोग इसको सीखते नहीं थे और इंटरेस्ट नहीं थी,
لیکن میں انٹرسٹڈ تھا کہ میرے بچے ہندی سیکھیں، تو اس کے لیے میں نے خود ہندی سیکھا پہلے، اس میں اپنے آپ کو تیار کیا، اور آج شکر ہے کہ آج میری ساری فیملی ہندی پڑھتی بھی ہے اور لکھتی بھی ہے، انہیں کسی نے روکا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں۔ میں یہ مانتا چلوں کہ شاید پیرنٹس بھی انٹرسٹڈ نہیں رہے ہیں، لوگ بھی انٹرسٹڈ نہیں رہے ہیں، اور سرکار بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ سرکار تب ہے جب پبلک ہے، اگر پبلک سرکار کو کسی چیز کے لیے مجبور کرے تو سرکار تو کرنا ہی کرنا ہے، سرکار تو ہماری ہے، سرکار تب ہے جب پبلک ہے۔ تو میرے خیال میں جج صاحب، میرے خیال میں صرف سرکار ہی نہیں، ویسٹرن لینگویج ہی نہیں، بلکہ ہم لوگ بھی اس میں ذمہ دار ہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ جی 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 ہاں بالکل۔ اچھا، اب میں دوسرا سوال اپنے جعفر جمیل صاحب سے کروں گا جو ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے۔ ہیلو جعفر جمیل صاحب، آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی جی، آپ نے بھی اعجاز طالب صاحب کو سنا۔ اردو کے ساتھ ایک اور لفظ جڑا رہتا ہے ہمیشہ، شاید لگتا ہے کہ اس کے بغیر اردو انکمپلیٹ ہے، وہ ہے ادب۔ اگر ہم کسی اور زبان کی بات کریں اور اس کے ساتھ ادب لائیں گے تو کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن اردو کے ساتھ اگر ادب نہ جوڑیں تو وہ بھی ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے۔ تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ادب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل، پہلے ہی میں شکر گزار ہوں آپ کی چینل کا، اردو ورلڈ سری نگر کا، آپ نے موقع دیا اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کا۔ جی جی، اس کے بعد اب ہم اردو ادب کی بات کریں گے۔ اردو ادب جو ہے، پہلے ہم ادب کی بات کریں گے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے۔ جی جی جی، ادب عربی زبان کا لفظ ہے، پہلے یہ عرب میں استعمال ہوتا تھا اور اس کے مفہوم تھے مہمانی۔ جی جی، مہمانی اور ضیافت کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا سر۔ اس کے بعد اس میں اور ایک معنی جڑ گیا، شامل ہو گیا، جی، جس کو شائستگی یا سلیقہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ مگر اگر اب اردو ادب کی بات کریں گے، اردو ادب کی میں اپنی رائے دوں گا کہ جو بھی بہترین باتیں، بہترین احساسات اور جذبات، جی جی، جس سے عریانی نہ پھیلے، جس سے سماج میں ایک باشعور طبقہ پیدا ہو، اسے ہم اردو ادب کہہ سکتے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا۔ میتھیو آرنولڈ کے نزدیک ادب جو بھی علم ہے، جو بھی علم کتابوں میں ہے، وہ ان کے نزدیک ادب ہے۔ جی، اور ہم بھی اسی سے متفق ہیں کہ جو بھی بہترین باتیں تحریر کی صورت میں ہیں وہ ادب ہے۔ جی سر، جس سے سماج میں عریانت نہ پھیلے، یا سماج میں ایک باشعور طبقہ پیدا ہو، اور ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ادب وہ سب ہے جس سے ایک انقلاب رونما ہو، جس سے احساسات و جذبات کی آبیاری ہو۔ جی ہلو، جی جی جی، جی ہلو، ہاں جی جی، عمر جمیل صاحب سن پا رہے ہیں نا؟ سن پا رہے ہیں؟ جی جی جی، آپ نے ابھی صحیح فرمایا کہ ادب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ ادب صرف اگر ہم دیکھیں، سب سے زیادہ اگر ہمیں کہیں سے ادب میسر ہوتا ہے، ادب جو شعور کی بنیاد بنتا ہے، آپ نے صحیح فرمایا، ڈگریاں حاصل کرنے سے، بڑی بڑی کیا بولتے ہیں پروفیشنل ہو یا دوسری ڈگریاں ہو، وہ حاصل کرنے سے با ادب انسان پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ ادب اگر ہم دیکھیں یہ الگ چیز ہے، لیکن ہے تو علم سے ہی، لیکن ہے ایک الگ چیز۔ اگر علم میں ادب نہ ہو تو وہ تعلیم یافتہ با ادب نہیں سمجھا جاتا ہے، اور اگر ادب ہو شامل اور کم پڑھا لکھا بھی ہو تو لوگ اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ اور اردو زبان ہی ایک واحد وہ زبان ہے، اور یہ پوری دنیا نے اس بات کو مانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادب اردو میں جتنا ملے گا، جتنا اردو زبان میں ادب ہے، اتنا کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ جذبات اور احساسات یہ دو بہت مہتوپورن چیزیں، بہت اہم چیزیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب تک موجود نہ ہو تو شاید اگر آپ اتفاق کریں میرے ساتھ تو میں یہ کہوں کہ انسان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے ادب کے بارے میں صحیح فرمایا۔
اور اردو کی جو کنٹریبیوشن ہے, اردو کی جو دین ہے ادب کے لیے, شاید ہم اسے فراموش نہیں کریں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور ہمارے ساتھ بنے رہیے گا آپ. اس کے بعد ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں سید حسام الدین صاحب, جو ایک شاعر ہیں, یہ اردو میں شاعری کرتے ہیں. اب ہم ان سے ذرا پوچھیں کہ چونکہ ماضی کی شاعری اور معاصری شاعری میں فرق کیا ہے. شاعری پہلے بھی کی جاتی تھی, شاعری آج بھی کی جاتی ہے, تو یہ ہمیں بتائیں ذرا حسام الدین صاحب کہ پہلے والی شاعری اور آج کی شاعری میں کیا فرق ہے. حسام صاحب. سید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر دور جدید اور دور سابقہ کی شاعری کا ہم موازنہ کریں گے تو دور جدید اور دور سابقہ کی شاعری میں بہت فرق ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں ایک زبان نہیں بولی جاتی ہے, مختلف بولیاں ہمارے اس ملک میں بولی جاتی ہیں. کہیں تیلگو, کہیں برج بھاشا, کہیں ہندی, کہیں اور کوئی زبان بولی جاتی ہے. جو دور سابقہ کے شعراء حضرات تھے, کیونکہ ان زبانوں کا اثر جب انہوں نے اردو زبان میں لکھنا شروع کیا تو ان زبانوں کا اثر اس میں نمایاں طور جھلکتا ہے, دکھائی دیتا ہے. کبھی ان کی شاعری میں قبو استعمال ہے, قصو استعمال ہے, اور بہت سے الفاظ برج بھاشا کے اس میں استعمال ہوا کرتے تھے. انگریزی الفاظ بھی ہمارے اس دور کے اردو شاعر نے استعمال کیے ہیں. اور میں دو لفظوں میں یہ آپ کو جواب دے دوں گا کہ جو دور سابقہ کی شاعری تھی اس میں ان زبانوں کا اثر بہت رہا ہے, اور جو دور جدید کی شاعری ہے شعراء حضرات نے بہت کوشش کی ہے کہ ان الفاظ کو نکال کر انہوں نے نئے سرے سے اردو کو ایک رونق بخشی. جی بھائی, صحیح فرمایا آپ نے کہ جیسے بیاسام صاحب کہہ رہے تھے کہ پرانے جو شاعر حضرات ہمارے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کوشش کرتے کہ اردو کے ساتھ ساتھ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ بھی جوڑ دیتے. لیکن آج کے جو شاعر حضرات ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اردو کو اردو کی شکل میں ہی رکھا جائے, اردو کو اردو کی شکل میں ہی رہنے دیا جائے, تاکہ یہ زبان اپنی افرادیت کو پہنچتی رہے اور بنی رہے. حسام صاحب, یہ بات آپ نے صحیح فرمائی, ہر ایک زبان کا اپنا ایک مہتو ہوتا ہے. آپ ہندی کی بات کریں یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر کوئی زبان وہ بیانڈ دا لمیٹس ہوتی ہے, اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے, زبانی سرحدوں کی ماتحت نہیں ہوتی ہے. صرف ہندوستان کی بات ہی نہیں, اگر پاکستان, افغانستان, ایران, عرب کنٹریز یا فارن کنٹریز جتنی بھی ہے, چونکہ آج کل جو دنیا ہے یہ تو کیا بولتے ہیں وہ نئی دنیا ہے اس وقت. آج کمپیوٹرائزڈ ہر ایک چیز ہے, آج انٹرنیٹ فیسلٹیز ہے, آج دوسری چیزیں ہیں. آج کا دنیا جو ہے ایک دم سکڑ کے رہ گیا ہے. اس دنیا میں پھیلنا, زبانوں کو عروج دینا یا دوسرے معاملات جتنے بھی ہیں انہیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا آج کے دور میں بہت آسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہمارے شاعر حضرات ہیں یا جو ہمارے ادیب یا قلمکار حضرات ہیں, آج ان کے پاس وہ سورسز اویلیبل ہیں, بالکل آسانی کے ساتھ ان کے پاس سورسز اویلیبل ہے. وہ چاہیں تو وہ شاعری کے ذریعہ, وہ اپنے مقالوں کے ذریعہ یا دوسرے رسالوں کے ذریعہ اردو کو فروغ دینے میں اپنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جنہیں آپ کا شکریہ ہے. میں آپ سب لوگوں سے ابھی یہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اور امید ہے طالب صاحب ہلو اعجاز طالب صاحب, جی آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ اور جعفر جمیل صاحب آپ, جی آپ کا شکریہ ہے. اور عمر گل صاحب آپ, طالب صاحب شاید عمر گل صاحب کسی وجہ سے ہمارے ساتھ جڑ نہیں پائے ہیں, ہم معذرت چاہتے ہیں. تو اردو زبان کو فعال بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ یہ زبان پھر مقبولیت کو پہنچے؟ اعجاز طالب صاحب ذرا آپ اس پر روشن ڈالیں. ہاں اعجاز طالب صاحب سے سر. آگے لے جائے گی تو اردو اپنے عروج پر انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. جی ترقی, ترسیل اور تحفظ. اردو کی ترقی کے لیے سرکاری سطح کی
कि सरकारी सतह के तोतीली माँ का सलूक रवा रखा जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल। तो दूसरा ये इसकी तरक्की के लिए एक तो हो गया कि सरकार इसके साथ सौतेलापन रवा रखी हुई है। जी हाँ, तो इसकी तरक्की के लिए क्या करना चाहिए? जी तरक्की के लिए क्या करना चाहिए और उसको फरोग देने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए पूरी तौर? जी वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी। उर्दू की तरक्की के लिए सरकारी सतह पर अगर इक़दाम उठाए जा सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। मसलन उर्दू कल्चरल अकेडमी होनी चाहिए हमारे यहाँ, जो कि नहीं है। सरकारी दफ्तरों में उर्दू का जो चलन है चलन है। और अगर ये तहफ़्फ़ुज़ यानी उर्दू की तरक्की के लिए कम्युनिटी ये एकेडमी हॉल कायम किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू करें कि अगर हम अपने स्टेट की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां पे उर्दू को एक सरकारी जुबान के तौर पर मान्यता दी गई है, इसको माना गया कि सरकारी जुबान है। तो यहाँ अगर हम देखें डायरेक्टर, अभी हमने रिसेंटली एक उस्ताद के साथ जो एक प्राइवेट स्कूल चला है श्रीनगर में, उनका एक इंटरव्यू लिया था हमने, वो हमारे फेसबुक चैनल पे भी आया था कि उनका सही फरमाता, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि जो डायरेक्टर एजुकेशन ऑफ कश्मीर है, अगर आप उनका साइन बोर्ड देखेंगे बाहर तो उसमें उर्दू का एक भी अल्फाज आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। चाहे जबकि सरकार ने, जैसे जम्मू कश्मीर ने इसको उर्दू जबान को सरकारी जबान तस्वर किया था और यह ऑर्डर भी हुआ था कि भाई यहाँ के साइन बोर्ड जो भी हैं, या चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो, सब उर्दू में होने चाहिए। लेकिन ना ही सरकार ने फिर उस पर कोई कोशिश की और ना ही लोगों ने उसको ऑप्ट किया, लोगों ने भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और डायरेक्टर एजुकेशन जहां से शायद इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए थी, वहां पर भी उर्दू का कोई अल्फाज मौजूद नहीं है। ये तो ठीक है, सरकारी सतह पर इसके साथ सौतेलापन रवा रखा जा रहा है, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया सर कि अगर पब्लिक सरकार को कोई चीज करने के लिए मनवाने की कोशिश करेगी तो सरकार जरूर करेगी, पर पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड सर। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, हमारी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे प्राइवेट स्कूलों में उर्दू बोला जा रहा है, बच्चों को उर्दू बोला जा रहा है, उनसे बोलाया जा रहा है उर्दू, लेकिन वो उर्दू लिख नहीं पाते हैं। बिल्कुल ये सही है जी। हमारे वालिदैन, हमारे बच्चों के वालिदैन या हम अपने बच्चों को उर्दू तो उनसे बुलवाते हैं, लेकिन उन्हें लिखना नहीं आता है। इसके लिए हमें हर एक फर्द को ये एहसास रखना है कि हम उर्दू हमारी वो जुबान है जिसमें हम अपने जज्बात, एहसासात और ख्यालात का बरमला इजहार कर सकते हैं। और इसमें अजीबों और शायरों का भी अहम रोल है, और खुसूसन सहाफत बरादरी का भी, सहाफती बरादरी भी अपना रोल इसमें अच्छी तरीके से अदा अगर कर सके तो उरूज पर वापस आएगी उर्दू जुबान हमारे जम्मू और कश्मीर में इंशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। दो चीजें हैं, एक होता है एहसास, किसी चीज को महसूस करना, सबसे पहले जरूरत है। शायद आपने भी फरमाया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हमारे बड़े बड़े पुराने स्कूल हैं हमारे स्टेट में या बाकी मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी, हर जगह बात बच्चे उर्दू में करते हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल है। होना तो ये चाहिए था कि फिर वहां पे भाषा भी इंग्लिश ही हो, लैंग्वेज इंग्लिश ही हो, लेकिन वैसा नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चों से उर्दू में बात की जाती है, लेकिन बच्चों को उर्दू पढ़ाना या लिखाना सिखाया नहीं जाता है। यह बात आपने बहुत सही कही है, इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन पेरेंट्स, ये भी आपने सही फरमाया कि पेरेंट्स घर में बच्चों के साथ उर्दू में बात करते हैं, लेकिन वो कभी ये फुर्सत या गवारा नहीं करते हैं कि हम कलम उठाए 10 मिनट निकाले और अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना या लिखाना सिखाए। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, इसमें उनका भी रोल है। और जहां तक सहाफती बरादरी का ताल्लुक है, सहाफती बरादरी पर सबसे ज्यादा अहम रोल इसमें अदा करना है कि अगर वो चाहे वो पब्लिक में अवेयरनेस भी कर सकते हैं, लोगों के जहन इसमें बेदार कर सकते हैं, उनमें जज्बा पैदा कर सकते हैं। सर, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, अगर हमारे रियासत जम्मू की जुबान उर्दू है, सरकारी सतह पर दर्ज उर्दू है, तो हमारे
हेलो, हाँ हाँ जी जी हाँ, हमारे सेक्रेटरीट में उर्दू में कहीं आपको बोर्ड नजर नहीं आएगा। जी नहीं। हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी हैं, हमारे जम्मू के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा। बिल्कुल उनको पढ़ना भी नहीं आता है उर्दू। अगर उनके पास उर्दू में आप एप्लीकेशन ले गई तो वो आपको किसी दूसरे को पढ़ने के लिए देते हैं। क्या वजह है? क्या वजह? अगर जम्मू और कश्मीर में ये सरकारी सतह पर जुबान कायम की गई है तो क्या वजह अपना इस पर अमलावार क्यों इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है? जी अगर आईएएस अफसर हमारे यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो उनको पहले उर्दू भी उनको आना चाहिए। बिल्कुल, वो आईएएस अफसर होते हैं लेकिन सरकारी जुबान से ना वाकिफ है। बिल्कुल, ये परेशानी मुझे बताए आप, हमारे डॉक्टर हजरात जितने भी अस्पताल यहाँ हैं कहीं नहीं लिखा है उसको शफाखाना उर्दू में, जबकि हमारा सरकार का ऑर्डर है इसमें कि आप ये उर्दू में लिखो बोर्ड। पिछले साल शायद सामू साहब, शायद मुझे याद है सामू साहब ने जो डिवीजनल कमिश्नर थे उसने ये बाज़ाब्ता इस पर अमल आवाई करने शुरू की, लेकिन तो जो ही वो वहाँ से ट्रांसफर हो गए तो बात खत्म। जी बिल्कुल। इसमें आपके साथ ये बात भी जोड़ना चाहूंगा कि न सिर्फ सरकारी दफातर में बल्कि अगर हम बात करें यहाँ के अदलिया की, हमारे कोर्ट्स, हमारे अदलिया में, हमारे अदालतों में जो भी कार्रवाई है वो उर्दू में ही लिखी जाती है तकरीबन। लेकिन हमारे जज साहिबान हैं या आपने फरमाया आईएएस ऑफिसर से जब वो कॉम्पिटेंट एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं तो उनसे ये नहीं देखा जाता क्या ये उनको उर्दू आता है या नहीं आता है, ये भी इन चीज की तरफ ध्यान नहीं देता है। जब जज साहिबान हमारे एग्जाम पास करते हैं तो जो उनको क्वालिफाइंग अथॉरिटीज होती है वो ये नहीं देखते कि क्या हमारे जज साहब को उर्दू पढ़ना या लिखना आता है या नहीं आता है। और उसके बाद क्या है कि जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही है या कोई भी ऐसा बड़ा आला अधिकारी जो होता है, जब वो अननोन होता है उर्दू से, तो नीचे वाले जो है वो भी कहते हैं कि चलो हमारी भी जान छूट गई। आपने सही बात फरमाया। असगर सामू साहब जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे, मुझे भी बिल्कुल याद है कि उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था इस चीज को कि भाई जब उर्दू सरकारी जबान है तो इस पर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इस पर अमल होना चाहिए। लेकिन जो ही वो ट्रांसफर है फिर वो बात ही ठप हो गई, फिर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शुक्रिया मैं आपका। और जाफर जमील साहब, क्या राय है आपकी इस उर्दू के बारे में, उर्दू के फरोग के बारे में, इसको कैसे मकबूलियत मिलेगी, कैसे इसको फरोग मिलेगा, आप क्या समझते हैं इस बारे में? हेलो जनाब, जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ जाफर जमील साहब। जी मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन अगर हम सारा दोष सरकार पे ठोसेंगे तो ये बात अच्छी नहीं लगती। जी लोगों की भी कुछ गलतियां हैं, लेकिन अगर उर्दू की मौजूदा हालत देखेंगे तो ये पहले से बहुत अच्छी है। जी अगर आप उर्दू अखबार देखेंगे, रसाई देखेंगे, पहले तो इतने नहीं निकलते थे जितने आज निकलते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है ना। हाँ ये बात निकलते सही है, पढ़ते नहीं है लोग। अगर 105 अखबार आज निकलते हैं, लेकिन मुझे बताओ पढ़ते कहाँ? और 105 अखबार आपको कहाँ मिलेंगे? वो तो लाइब्रेरी के लिए होते हैं, पैसे कमाने के लिए होते हैं। पैसे कमाने का एक आसान जरिया है जी बिल्कुल। मैंने पहले भी अर्ज किया था ना, क्या उर्दू को क्या फायदा है उससे? मुझे बताए, मेहरबानी करके मुझे ये समझे, उर्दू को क्या फायदा है उससे? 105 अखबार तकरीबन यहाँ निकलते हैं। देखिए अगर लोग अखबार पढ़ते नहीं होंगे तो वो जो अखबार जो रसायल निकालते हैं उन्होंने तो अपनी एकेडमी, अपने वो कुतुब क्या बोलते हैं इसको, वगैरह बंद किए होते ना। नहीं बाबा, यहाँ पे जो यहाँ पे कश्मीर में लोग हैं वो पूरे अखबार पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं। अब सिर्फ एक मसला है यहाँ पे जो तहरीर का है। यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो तहरीर नहीं मुझे सर बताइए, आपको 105 या 6 के करीब यहाँ पर उर्दू रिसाले और अखबारें निकलते हैं। मुझे बताओ वो कहाँ पर मिलेंगे? वो सिर्फ महदूद इन्होंने रखा है पैसा जरिए के लिए, लाइब्रेरियों के लिए और गवर्नमेंट इदारों को देखने के लिए। वो मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। जी आप यहाँ पर गिने जी मैं आपको तारिफ साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आपने लाइब्रेरीज की बात की। देखिए हमारे भी एक जिम्मेदारी बनते हैं, हमें दूसरों पे ये सारा दोष नहीं डालना चाहिए। अब कहाँ आप देखिए किसी टाउन में, किसी शहर में या किसी बड़े, आजकल तो गाँव भी टाउन की शक्ल में शोहरत अख्तियार कर चुके हैं,
कौन सी ऐसी जगह है जहां पे लोगों के दिल में ये शौक और जज्बा हो कि हम अपने तौर पे कंट्रीब्यूट करके एक लाइब्रेरी कायम करें, शाम पे एक रिक्रिएशन रूम कायम करें, वहां पे ये रिसाले ये अखबार रखें। लोगों के पास पैसे की आज कोई कमी नहीं है, मैंने पहले अर्ज किया था कि वसाइल की कोई कमी नहीं है आजकल, लेकिन कहां पे आपने देखा कि लोगों में ये जज्बा है कि वो अपने इलाके में अपने एरिया में छोटी या बड़ी कोई लाइब्रेरी कोई रिक्रिएशन रूम कायम करके अपने बच्चों को कम से कम ये कहीं शाम को भी बेटा चलो मेरे साथ 15 मिनट 20 मिनट चलो हम लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पे नुस्खे रखे हैं, वहां पे किताबें रखी हैं, वहां पे अखबार है, रिसाले हैं, आओ बेटा हम उसको देखिए, वो आप भी पढ़ो उसमें। अगर बाप अपने बच्चे को साथ ले जाता, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3री बार बच्चा भी माइल हो जाता, वो भी इंटरेस्ट उसकी भी बढ़ जाती उसमें पढ़ने के लिए। बट लोग भी इसमें सरकार या सिर्फ मीडिया पे ही इसका दोष मत डालिए, हम लोग भी जिम्मेदार है ना इसके। हम लोग टीवी के सामने अपने बच्चों को घंटों बैटरी दे देंगे, लेकिन ना ही हमारे पास लाइब्रेरीज है, ना कहीं रिक्रिएशन रूम है, ना हमारे घरों में ही हमने वो वसाइल या वो फैसिलिटीज रखी हैं कि हम अपने बच्चे को हाथ पकड़ के ले जाए, बेटा एक किताब है इसमें कोशिश करो पढ़ने की, नहीं करते हैं। मैंने पहले आपको मैंने अगर शायद आप दोहराएंगे, मैंने कहा था कि जब मेरे बच्चों मुझे शौक हुआ कि मेरे बच्चे कल हिंदी सीखें, तो मैंने खुद पहले हिंदी सीखा एक स्टूडेंट की तरह, वो भी बगैर किसी उस्ताद के, बहुत मेहनत के साथ, और हिंदी सीखा, पढ़ना लिखना सीखा। और आज कभी कभी मुझे लोग शिकवा भी करते हैं, नाज़रीन शिकवा भी करते हैं कि आपके मुंह से हिंदी के अल्फाज कैसे निकलते हैं। आज मैं उर्दू अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। इट वॉज अर्ली बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क की, जब ने कोशिश की मैंने सीखा, मैंने अपने बच्चों को सिखाया। अगर हमारे पेरेंट्स, अगर हमारे लोग, हमारे आसपास के चीज में हम रहते हैं, हमारा ये माहौल, अगर वो आज भी तैयारी करें कि नहीं यार हम उर्दू को फरोग देने के लिए कोशिश करेंगे, कोई 24 घंटे तो इस पर गुजारने नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा अगर हम निकालें अपने बच्चों को, चलिए रिक्रिएशन रूम में नहीं सी घर में हम ऐसे बंदोबस्त रखें कि बच्चों को खेलने के बजाय पेपर हाथ में दे दे, खेलने के बजाय उसको ऐसी कोई किताब हाथ में दे दे जो उर्दू में लिखी हो, या उर्दू ही नहीं, हमें उर्दू ही नहीं कहेंगे, शायद हमारे सामने बहुत सारे ऐसे भी हैं जो दूसरी जबानों से भी वाबस्ता है, हम हर जबान की बात करते हैं कि अगर वो खिलौने के बजाय, अगर वो दूसरी टीवी के बाकी चीजों के फजूल चीजों के बजाय अगर अपने बच्चों को वो मनमोहित ऐसी चीजें लाए जिससे वो उनको जो लैंग्वेजेस है उसमें उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको इंटरेस्ट बढ़ा दे, तो हाउ इज इट नॉट पॉसिबल कि ये फरोग नहीं पाएगा। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब मैं हसानुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या शायरी के जरिए आप उर्दू को बढ़ावा दे सकते हैं? एक और जरा अगर कर सकते हैं आप अपनी शायरी में से कोई मीठी 2-3 शायरी हमें सुनाइए, 2-3 नुक्ते हमें सुनाइए, जिससे लोग कहेंगे सचमुच अगर हम शायरी की उर्दू शायरी को ही सुने या पढ़े तो ये बहुत लतीफ और बहुत लजीज जबान है। हसनुद्दीन साहब, सईद साहब, जल्दी अगर हम दूसरी जबानों को देखेंगे, बहुत सी कहानियां लिखी जा चुकी हैं। अगर अंग्रेजी मानो या अरबी मानो या और कोई जबान मानो, जी जी, अगर उनमें जो कहानियां लिखी गई है अगर उसका तर्जमा हम आसान और सलीस उर्दू में करेंगे तो इस तरह भी उर्दू अदब में खिदमत हो सकती है, फरोग मिल सकता है। फरोग, पुराने अल्फाज इस जबान से निकालें और उर्दू जबान को सही रास्ते पर गामजन करें। चलिए आप अपने शायरों में से अपनी किसी गजल में से हमें 1-2 नुक्ते से सुनाएं। तालिब साहब आप सुन रहे हैं हमें? हेलो, हाँ जी तालिब साहब, आप शायरी भी करते हैं ना जी? क्या आप हमें अपनी किसी गजल से हमें 1-2 बतला सुनाए हमारे नाजरीन को? हेलो जी जी जी, मैंने अर्ज किया था कि आप अपनी किसी गजल से, हाँ गजल से, जी हाँ 1-2 बंद हमारे नाजरीन को सुनाएं जिन्हें उन्हें ये महसूस हो कि उर्दू बहुत मीठी जुबान है। अच्छा, जी जी, मतला है, जी 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 मतला है, हाँ, शेर है। मेरा होना बाइस सदमात है, मेरा होना बाइस सदमात है, जिनके होते हुए भी अंधेरी रात है, जिनके होते भी अंधेरी रात है। जिस्तजू किसकी है, जिस्तजू किसकी है, अब ए दिल मेरे हक पर हूँ मैं, बस यही एक बात है। जरा फिर से इसको दोहराएं प्लीज।
जस्तजू किसकी है, जस्तजू किसकी है, अब ए मेरे दिल हक पे हूँ, बस यही एक बात है। हक पे बस यही एक बात है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सर। शेर है, शुक्रिया शुक्रिया। जी जी शेर है सर। सर हाँ। कत्ल कैसे में हुआ पूछो न तुम, कत्ल में कैसे हुआ पूछो न तुम, मेरी किस्मत में लिखी बस मात है। अच्छा अच्छा, मेरी किस्मत में लिखी बस मात है, बस मात है। ये शेर है सर। अच्छा, ये तजाबुल उनका है जाने दिया, ये तजाबुल उनका है जाने दिया, वरना मेरी क्या यहाँ औकात है। वाह 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 वाह, वरना मेरी यहाँ क्या औकात है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, मेहरबानी। हसन जी साहब आप एक दो गजल शेर है। अच्छा चलिए, एक मिनट। अच्छा चलिए पूरा गजल सुना दे। जी जी जी। वक्त की कमी को कहा जिसने भी नाहक मर गया, हक कहा जिसने भी नाहक मर गया, तेरी दुनिया की अजब सौगात है। वाह 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 वाह। और एक शेर है, सुर्ख रूह होकर चले मुल्के अदम, सुर्ख रूह होकर चले मुल्के अदम, सुर्ख रूह होकर चले मुल्के अदम, हाँ शहीदों की यही बारात है। शेर है, पाकर खोना खो के पाना सीख ले, दिल जलों की यही निराली बात है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं अकेला कहाँ हूँ तालिब यहाँ, मैं अकेला कहाँ हूँ, मैं अकेला तालिब यहाँ, मैं अकेला हूँ कहाँ तालिब यहाँ, एक तेरी जात है, मेरा होना बाइस सदमात है, जिनके होते हुए भी। तो सर टाइम वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखिएगा। वैसे ये तो सारी की सारी सुनानी है, इन पर साहब हमें 2-3 मतले चाहिए आपके। खुदा की जात पर लिखा है, रहमान रहीम तेरे सिफात, रहमान और रहीम तेरी सिफात, तू वहदहु ला शरीक ज़ात, तू वहदहु ला शरीक ज़ात, तेरे दम से है ये कायनात, तू वहदहु ला शरीक ज़ात, तू समद अबद बेनियाज हो, साजंदरों का साज हो, मिले मस्ती में उन्हें नजात, तू वहदहु ला शरीक ज़ात, तू साहिबे कमाल भी, तू साहिबे जमाल भी, है अबद अबद तेरी हयात, तू वहदहु ला शरीक ज़ात, तू आबशारों में आया, बुलबुल के नगमों की जुबान, बुलबुल के नगमों की जुबान, तुझसे ही है दिन और रात, तू वहदहु ला शरीक ज़ात। शुक्रिया। जर्रे जर्रे में तेरा नूर, शम्सो कमर से है ज़हूर, जर्रे जर्रे में तेरा नूर, शम्सो कमर से है ज़हूर, शम्सो कमर से है ज़हूर, हर जा आया है तेरी ज़ात, हर दम आया है तेरी ज़ात, हर जा आया है तेरी ज़ात, तू वहदहु ला शरीक ज़ात, तू किधर भी है, तू जिधर भी है, तू इधर भी है, तू उधर भी है, वो खिज़र को दी आबे हयात, तू वहदहु ला शरीक ज़ात, मूसा और वो कोह तूर, तेरे नूर से लर्जे जरूर, मूसा और वो कोई दूर, तेरे नूर से लर्जे जरूर, फुरकान गवाह कुरान की बात, तू वहदहु ला शरीक ज़ात, माशाअल्लाह, गफार तुई, कफार तुई, मख्तार तुई, सतार तुई, तेरा नाम है मेरी नजात, तू वहदहु ला शरीक ज़ात, तू ही सवाल, तू ही जवाब, तेरा कुन फयकुन लाजवाब, तू ही सवाल, तू ही जवाब, तेरा कुन फयकुन लाजवाब, तेरे ज़ेर पहर एक हयात, तू वहदहु ला शरीक ज़ात, गुलजार कहे ये बार बार, गुलजार कहे ये बार बार, आपका तखल्लुस है। हाँ, बेचैन दिलों का तू करार, सजदे में हूँ दिन और रात, तू वहदहु ला शरीक ज़ात। शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। हसन जी साहब एक थे नाज़रीन किराम, ये उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर पे आज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे जनाब एजाज तालिब साहब। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो कॉलम नवीस हैं, शायर हैं, अदीब हैं। जाफर जमील साहब जुड़े थे जो शायर और कलमकार हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे सैयद हिसामुद्दीन साहब जो उर्दू के शायर हैं। तो आज मुझे लगता है हमने जो कोशिश की अपने जेज़त मेहमानों का कीमती वक्त लेकर आपके साथ गुफ्तगू करने की, हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। हमें आपकी राय, हमें आपकी आरा का इंतजार रहता है। हम चाहते हैं
कि हाँ आप हमारे प्रोग्राम के बारे में हमें लिखें। हमारे YouTube चैनल है उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर। हम अपने नाजरीन किराम से गुजारिश करते हैं कि वो इसको सब्सक्राइब करें और फिर अपनी राय अपनी आरा हम तक पहुंचाएं, ताकि हम कोशिश करें आगे आपके साथ और बेहतरीन अजीम और क्या कहेंगे वो जो लबरेज शख्सियात हैं जिन तक हर किसी का पहुंचना मुमकिन नहीं होता है, उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उन्हें आपके रूबरू करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आज मैं अपने नाजरीन किराम से रुखसत लेता हुआ सैयद नारबली फिर एक बार आपको उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर के प्लेटफॉर्म से प्यार भरा आदाब।